Bismillahirrahmanirrahim. We are starting our next series of lectures in how to construct diagnosis on approach to general symptoms. Initially, we discussed an approach to abdominal symptoms, and we covered one by one from abdominal pain to approach to liver dysfunction in previous lectures. So, what are general symptoms? So, symptoms or complaints which are not specific to any organ system or can be indicator of disease in any organ system of the body. So जनरल सिम्टम्स वो सिम्टम्स या वो अलामात हैं बेसिकली जो किसी एक ऑर्गन सिस्टम के साथ स्पेसिफिक नहीं है. मतलब आप अगर वो कंप्लेंट पेशेंट देता है आपको या उस कंप्लेंट के साथ आता है तो आप बगैर डिटेल्ड हिस्ट्री लिए नहीं बता सकते कि किस ऑर्गन सिस्टम की वजह से पेशेंट को ये मसला हो रहा है. किसी भी ऑर्गन सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट उसमें हो सकती है, फ्रॉम हेड टू टो. सीएनएस हो सकता है, चेस्ट इन्वॉल्व हो सकती है, कार्डिक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, एब्डोमिनल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जेनिटो यूरिनरी हो सकती है, मस्कुलोस्केलेटल हो सकती है, इवन कोई स्किन का इशू हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. सो दैट्स व्हाई दीज सिम्टम्स आर वेरी ट्रिकी and they need a very detailed and thorough history अगर पेशेंट सिर्फ और सिर्फ जनरल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है. सो व्हाट आर द जनरल सिम्टम्स? वी हैव द टॉप सिम्टम इज़ फीवर. सबसे पहली चीज़ जो बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं ओपीडी में या इमरजेंसी में हमारे पास आती है वो फीवर के साथ आती है. और आपको पता है फीवर विद फोकस एंड विदाउट फोकस, इन्फेक्शन और सम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर और malignancy वो कहीं पे भी हो सकती है. Secondly, rash. Rash can be the indicator of anything. It can be some infectious etiology. It can indicate some allergic etiology. It can be a paraneoplastic syndrome of some underlying malignancy. And diseases from any organ system can present with rash on the skin. Fatigue, sweating, change in weight, either obesity or weight loss, lymphadenopathy and bone pains. All these 6 and 7 symptoms are termed as general symptoms, and it is necessary to ask about these general symptoms in history taking of any symptom. कोई भी complaint मरीज आपको करता है आके, आइदर वो इन्हीं जनरल सिम्टम्स में से हो या इसके अलावा किसी भी ऑर्गन सिस्टम से स्पेसिफिक कोई कंप्लेंट हो. लाइक इवन चेस्ट पेन की कंप्लेंट करता है, एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट करता है, हेडेक की कंप्लेंट करता है पेशेंट आपको, आपने ये जनरल सिम्टम्स लाजमी इंक्वायर करने हैं. इसके बगैर हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती है. दे आर दैट मच इम्पॉर्टेंट to understand. So how we approach these general symptoms? This is a general schematic to approach a patient presented in OPD or emergency with general symptoms. So first of all is OD para that we have already discussed in approach to abdominal symptoms. You will ask about the onset, like if we take an history of fever. So we'll ask about the history of fever. Is it sudden in onset? The duration of the fever, and then the progression, whether it's relieving or it's worsening or it comes in episodes, then any relieving factor or aggravating factor, and is there any associated features present or not. So you will complete the OD para first, then the associated general symptoms. Second thing, you will ask about other general symptoms. आप उसका OD पैरा कंप्लीट करेंगे पहले उस पर्टिकुलर सिम्टम का, तब देन सेकंड नंबर पे आप बाकी एसोसिएटेड सिम्टम्स के मुतालिक पूछेंगे जो कि हमने पीछे डिस्कस किए हैं. यू विल इंक्वायर अबाउट एनी पर्टिकुलर रैश, एंड यू विल इंक्वायर अबाउट एनी चेंज इन वेट और एनी lymphadenopathy, any fatigue, any sweating, especially night sweats, and things like that. So after inquiring about other general symptoms, you need to localize the general symptom in the organ system if it's possible. आपने उसी पर्टिकुलर सिम्टम का OD पैरा किया, उसके बाद बाकी जनरल सिम्टम्स के क्वेश्चंस पूछे. अब तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि आपने हेड टू टो तमाम ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं उस पेशेंट से, ताकि आप उस जनरल सिम्टम को लोकलाइज कर सकें
कि वो किस ऑर्गन सिस्टम की पैथोलॉजी की वजह से अपेयर हुआ है, या हो सकता है कि आप ना लोकलाइज कर पाए, लेकिन दिस इज़ द थर्ड टास्क टू डू. सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेड टू टो. आप उससे पहले CNS के क्वेश्चंस पूछ लें बेशक, एंड देन कार्डियो स्पेसिफिक पूछ लें, देन पल्मो के पूछ लें, देन एब्डोमिनल के पूछ लें, देन जेनेटो यूरिनरी के पूछें उससे, मस्कुलोस्केलेटल के पूछ लें, देन आप स्किन रिलेटेड क्वेश्चंस उससे पूछ लें. तो आपने उसको लोकलाइज करना है. उसको लोकलाइज करना है कि ये जनरल सिम्टम किस ऑर्गन सिस्टम के अंदर स्पेसिफाई हो रहा है या लोकलाइज हो रहा है. लेट्स से इफ द पेशेंट प्रेजेंटेड इन ER विद हाई ग्रेड फीवर, और आपने उसकी हिस्ट्री ली और आपको हिस्ट्री में फीवर के साथ एब्डोमिनल पेन एंड लूज मोशन भी मिल गया, दैट मीन्स द काज ऑफ फीवर इज़ इन GIT. कि जो सिम्टम या वो फीवर जो है वो कहाँ पे लोकलाइज हो रहा है, जाके वो GIT में लोकलाइज हो रहा है. इसी तरह एक पेशेंट आपके पास आता है वेट लॉस के साथ. ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस फ्रॉम लास्ट 6 months. He lost about 12 to 14 kg weight. और आपने जब हिस्ट्री इंक्वायर की, that you find that the patient is also suffering from some cough and hemoptysis from the same period of time, कि उसको 6 महीने से ज़्यादा कफ एंड हेमोप्टिसिस भी है. तो अब आप वेट लॉस को लोकलाइज कर सकते हैं कि दैट माइट बी द इंडिकेटर ऑफ सम पैथोलॉजी इन पल्मोनरी सिस्टम, कि हो सकता है कि उसके कोई ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो, कोई ट्यूबरकुलोसिस हो, जिसकी वजह से पेशेंट आपके पास वेट लॉस के साथ प्रेजेंट किए. इसी तरह एक पेशेंट फटीग के साथ प्रेजेंट करता है आपके पास, आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं एंड आपको हिस्ट्री में उसके साथ एक्सर्शनल डिस्निया मिल जाता है, पैल्पिटेशंस मिल जाती हैं, एंड लो ग्रेड फीवर भी मिल जाता है साथ उसके आपको, एंड लेटर ऑन एग्जामिनेशन के ऊपर आपको मरमर भी मिल जाता है. तो दैट माइट बी अ केस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. तो हो सकता है वो पेशेंट आपके पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ प्रेजेंट कर रहा हो. सो जर्नल सिम्टम्स आप जब भी आपके पास आएंगे तो आपने उस जर्नल सिम्टम को लोकलाइज करना है. यू हैव टू डू अ थॉरो सिस्टेमिक रिव्यू. आपने तमाम ऑर्गन सिस्टम्स को टच करना है. वो आप अपनी मर्जी से अप्रोच कर सकते हैं, मसला नहीं है. यू कैन स्टार्ट फ्राम हेड. आप CNS से रिलेटेड पूछें, आप ENT से रिलेटेड पूछ लें, आप ओरल कैविटी से, देन GIT, देन जेनेटोयूरिनरी, देन पल्मोनरी, कार्डिक, मस्कुलोस्केलेटल. ये आप एक एक करके सारे पूछते हैं क्वेश्चंस, ताकि आप देख सकें कि ये जनरल सिम्टम कहाँ पे लोकलाइज हो रहा है. देन लास्टली वही 6 to 7 क्वेश्चंस जो हमने एब्डोमिनल हिस्ट्री के अंदर किए थे. यू हैव टू स्पेसिफिकली इंक्वायर अबाउट द ड्रग्स. ड्रग्स के मुतालिक आपने लाजमी क्वेश्चन करना है, क्योंकि ड्रग्स किसी हद ना किसी हद तक इन्वॉल्व होती हैं. स्पेसिफिकली अगर एक पेशेंट चेंज इन वेट के साथ आता है, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो वेट लॉस करवाती हैं, देयर आर फ्यू ड्रग्स जो कि वेट गेन भी करवाती हैं. देन टॉक्सिन एक्सपोजर, यस, chronic heavy metal exposure can cause weight loss, can cause low grade fever, can cause prolonged fatigue. तो टॉक्सिन एक्सपोजर का लाजमी पूछना है आपने. इन्वायरमेंटल एक्सपोजर का लाजमी पूछना है. स्पेसिफिकली अगर एक पेशेंट फीवर या चेंज इन वेट के साथ प्रेजेंट करता है तो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स का लाजमी पूछें उस पेशेंट से. इन्फेक्शियस कंटैक्ट, स्पेशली TB कंटैक्ट की हिस्ट्री लाजमी लें उस पेशेंट के से जो है. देन टिक बाइट, मॉस्किटो बाइट, उसकी हिस्ट्री लाजमी लें उस पेशेंट से. एनिमल कंटैक्ट की हिस्ट्री लाजमी लें, स्पेशली अगर एक पेशेंट फीवर के साथ प्रेजेंट करता है और आपको फोकस नहीं मिल रहा है उसका, एंड यू आर सस्पेक्टिंग ब्रुसेला. इसी तरह इन्फेक्शियस कंटैक्ट आपके पास कोई माइनर्स हैं, कुछ सीवर्स हैं, कोई अनकंटेमिनेटेड सराउंडिंग्स हैं जिसमें लेप्टोस्पायरोसिस का रिस्क है, वो आपने लाजमी पूछना है. तो आप इन्फेक्शियस कंटैक्ट को लाजमी जहन में रखेंगे जब भी आप जनरल सिम्टम को अप्रोच कर रहे हैं. एटलीस्ट TB कंटैक्ट लाजमी पूछें. कोई और फैमिली मेम्बर तो नहीं है जिसको सेम सिम्टम या सेम कंप्लेंट है, वो लाजमी पूछें. इसी तरह मॉस्किटो बाइट, टिक बाइट, एनिमल बाइट, एनिमल कंटैक्ट, पेट्स, इनका लाजमी क्वेश्चन करें आप. जो ये बहुत ज़रूरी हैं, इसके बगैर आपकी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती. सेक्सुअल एक्सपोजर, यस, सेक्सुअल एक्सपोजर बहुत बहुत अहम, चूँकि क्रोनिक हेपेटाइटिस B, क्रोनिक हेपेटाइटिस C, HIV, सिफिलिस,
all these pathologies and diseases can present with fever, can present with fatigue, can present with weight changes. तो ये उसके साथ present कर सकते हैं and they are very common diagnosis. बहुत कॉमनली एक पेशेंट फटीग के साथ आपके पास आता है, आप उसकी हिस्ट्री प्रूव करते हैं, आपको मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स मिलते हैं, आप लेटर ऑन इन्वेस्टिगेट करते हैं, दैट टर्न्स आउट के पेशेंट को सिफिलिस होता है या पेशेंट को क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी या सी निकल आता है या HIV निकल आता है. सो सेक्सुअल एक्सपोजर की हिस्ट्री बोथ विद मैन एंड वुमेन आपने लाजमी लेनी है. देन एंडोक्राइनोपैथीज, ये भी हमने डिस्कस किया था. कोई भी हिस्ट्री आपकी कंप्लीट नहीं होती जब तक आप एंडोक्राइनोपैथीज रूल आउट नहीं करेंगे. तो डायबिटीज़ की हिस्ट्री लें उस पेशेंट से, डायबिटीज़ की सिम्टम्स पूछें उससे अगर वो डायबिटिक नहीं है. देन थायराइड डिसफंक्शन का लाजमी पूछें उस पेशेंट से. बोथ हाइपोथायराइडिज्म कैन काज फटीग, कैन काज वेट चेंजेस, कैन काज febrile like illnesses. तो एंडोक्राइनोपैथ थायराइड डिसफंक्शन के क्वेश्चंस आपने लाजमी पूछने हैं कि आपको गर्मी सर्दी बर्दाश्त करने में मसला तो नहीं होता है, वज़न में तब्दीली तो नहीं महसूस कर रहे हैं आप, दिल की धड़कन तेज़ तो नहीं होती है, पसीना ज़्यादा तो नहीं आता है, हाथ पांव कांपते तो नहीं हैं आपके, मोशन तो नहीं लगते हैं आपको, इसी तरह वज़न बढ़ तो नहीं रहा है, सर्दी बर्दाश्त करने में मसला तो नहीं होता है आपका, जिल्द खुरदरी सख्त तो नहीं होती जा रही है, बाल तो नहीं गिर रहे हैं, डिप्रेशन, मूड चेंजेस, नींद में ख़राबी का आना, ये चीज़ें महसूस तो नहीं कर रहे हैं. देन ऑटोम्यून एक्सपोजर, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ऑटोम्यून आपने लाजमी इंक्वायर करना है. लाइक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं आपके पास, SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑटोम्यून हेपेटाइटिस है आपके पास. तो ऑटोम्यूनिटी की हिस्ट्री आपने लाजमी लेनी. देन इम्यूनोसप्रेशन, स्पेसिफिकली अगर कोई पेशेंट आपके पास फीवर के साथ आता है तो इम्यूनोसप्रेशन को लाजमी देखें कि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, स्पेशली ओल्ड एज पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ रेजिडेंसी इन नर्सिंग होम्स, प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन, chronic steroid use, diabetes mellitus, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ HIV. तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इम्यूनो सप्रेशन को शो करती हैं. तो ये आपने लाजमी इंक्वायर करना है. ड्रग्स, टॉक्सिन्स, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स, इन्फेक्शियस कंटैक्ट, सेक्सुअल एक्सपोजर, एंडोक्राइनोपैथीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स एंड इम्यूनो सप्रेशन. तो इन 4 स्टेप्स में जब आप लेकर चलेंगे जनरल सिम्टम को, लेट्स से एक पेशेंट आपके पास चेंज इन वेट के साथ आया, यू डिड एन ओडी पैरा, आपने उसके एसोसिएटेड जनरल सिम्टम्स भी पूछ लिए, देन यू अटेम्प्ट टू डू अ वेरी थॉरो सिस्टेमिक रिव्यू, और आपने उस जनरल सिम्टम को ट्राई किया कि आप किसी न किसी ऑर्गन सिस्टम में उसको लोकलाइज कर सकें. एंड देन यू आस्क these 6 and 7 questions regarding drugs, toxin, environmental exposure, infectious contact, sexual exposure, endocrinopathies, autoimmunity and immunosuppression. आप लाजमन देयर इज मोर देन 70-80% चांस कि आप किसी ना किसी डायग्नोसिस तक या 1 or 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस तक पहुंच जाएंगे, एंड लेटर ऑन उसको इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म करना आसान होगा. सो दिस इज अ जनरल अप्रोच टू जनरल सिम्टम्स. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस वन बाय वन regarding approach to fever, weight changes, fatigue, rash, and lymphadenopathy inshallah. Thank you very much.